أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 160 اسٹارٹ کریں گے آج اور آیت نمبر 160 161 162 163 and 164 and 165 کا فرسٹ پارٹ ان سب کی ایکسپلینیشن ایک ساتھ ہے تو سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں آیات کی ما بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہیں للناس لوگوں کے واسطے فی کتاب کتاب میں اولئک یہی وہ یلعنہم اللہ دور کرتا ہے انہیں اللہ ویلعنہم اللہ اور لعنت کرتے ہیں انہیں اللائنون لعنت کرنے والے. البتہ ایک منٹ جسٹ جی یہ جو پیچھے ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بیچتے ہیں. یہ آیت نمبر جو 159 تھی اس کا لاسٹ پارٹ تھا. نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 160 اللہ مگر الذین جو لوگ تابوا توبہ کر لیں واصلحوا اور اصلاح کر لیں وبینوا اور ظاہر کر دیں فاولئک تو ایسے لوگوں کی اتوب علیہم میں توبہ قبول کرتا ہوں وآنا اور میں التواب بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا. البتہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حقیقت کو ظاہر کر دیا تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں. ان بے شک الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا وماتوا اور مرے وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر اولئک یہی وہ علیہم جن پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اور لوگوں کی اجمعین سب کے سب. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فرشتے اور سب لوگ لعنت بیچتے ہیں. خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا اور نہ ہم انہیں ینظرون مہلت دی جائے گی. وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے نہ ان میں سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا خدا الہ خدا واحد واحد ایک لا نہیں الہ خدا الا ہوا بجز اس کے اور رحمان بہت ہی مہربان اور رحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا. اور تمہارا خدا ایک خدا ہے اور اس رحمان و رحیم خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان بے شک فی میں خلقی پیدا کرنے السماوات آسمانوں والارض اور زمین اور بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں. یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے کہ وہ صرف ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اس آیت میں توحید خداوندی کے ایسے عام فہم دلائل کا ذکر ہے. عام فہم مطلب جو عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے اور دلائل مطلب پروف جن کا ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں یعنی زمین و آسمان کی تخلیق لیل و نہار کی گردش شمس و قمر کی روشنی بارش کا پانی زمین کی ہریالی اور کائنات میں ہر طرف بے مثال نظم و ضبط ایسے واضح دلائل ہیں کہ ایک ہے جو ایک خالق حقیقی کی نشاندہی کرتے ہیں. توحید خداوندی کے عقلی دلائل کے لیے فقیر کی تصنیف اسلامی عقائد ملاحظہ فرمائی. یہ مطلب جو رائٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو ایک بک ہے اسلامی عقائد وہ کہہ رہے ہیں کہ عقلی دلائل جو ہے اس کو مطلب جو پروفز ہے وہ آپ اگر اور دیکھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی بک ریڈ آؤٹ کریں. نیکسٹ دیکھتے ہیں بیٹا جی ٹرانسلیشن ہم واں اور اختلافی گردش اللیلہ رات والنہاری اور دن کی والفلکی اور جہازوں التی جو تجری چلتے ہیں فی البحر سمندر میں بما ساتھ جو ینفع نفع پہنچاتی ہے الناس لوگوں کو وما اور جو انزل اللہ اتارا اللہ نے من السماء بادلوں سے من ماء پانی فاحیا پھر زندہ کیا بھی اس کے ساتھ الارض زمین کو بعد موتیہا اس کے مردہ ہونے کے بعد وبثا اور پھیلا دیے فیہا اس میں من کل ہر قسم کے دابت جانور وتصریفی اور بدلتے رہنے میں اور ریائی ہواؤں کے والسحابی اور بادل المسخری حکم کا پابند بینا درمیان السماء آسمان والارض اور زمین کے لآیات نشانیاں لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. اور رات و دن کی گردش میں اور جہازوں میں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھائے سمندر میں چلتے ہیں
जो अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, जिसके साथ जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद जिंदा किया, और जमीन के में हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं के बदलते रहने में और बादल में जो जमीन और आसमान के दरमियान हुक्म का पाबंद है, इन सब में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। वमिनन नासी, और कुछ लोग में ये तागिज़ु जो बनाते हैं, मिन दूनी, औरों को अल्लाहु अल्लाह, और कुछ लोग औरों को अल्लाह ताला का मद्दे मुकाबिल बनाते हैं, अंदादन मद्दे मुकाबिल। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो नादान इन वाज़िह दलाइल पर गौर नहीं करते और अपने खालिक की हकीकी को छोड़कर बुतों और झूठे सरदारों की मोहब्बत का दम करते हैं, क़यामत के दिन वो अपने अजाब को देखकर अल्लाह ताला की कुदरतों का एहतराफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। मतलब अल्लाह ताला की कुदरत को फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, मगर उस वक्त उनके इकरार बेसूद होगा, कोई फायदा नहीं उनको होगा। काश वो इसी दुनिया में अपने खालिक की हकीकी पर ईमान ले आए। ये नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलेशन। युहिब्बूनहुम, मोहब्बत करते हैं उनसे, कहू भी जैसे मोहब्बत अल्लाहु अल्लाह की मोहब्बत करते हैं उनसे जैसे अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए। वल्लज़ीना, और जो लोग आमनू ईमान लाए, अशद्दु सबसे ज्यादा हुब्बन मोहब्बत अल्लाह लिल्लाहि अल्लाह से, और जो ईमान लाए हैं वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि वालिदैन, अहलो अयाल मतलब रिलेटिव्स, और मालो जा से मोहब्बत इंसानी फितरत है। इस्लाम इनसे मोहब्बत की तरगीब देता है, लेकिन मोमिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करता है, ताकि जब कभी ये मोहब्बतें अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में रुकावट बने तो मोमिन पर अल्लाह ताला की मोहब्बत गालिब आ जाए और वो इन मोहब्बतों की परवाह किए बगैर अता दिलबानी में सरगर्म अमल हो जाए। नीज अंबिया, अहले पाक, सहाबा इकराम और सालिहीन से मोहब्बत भी मोमिन के ईमान का हिस्सा है, और जो मोहब्बतें मोमिन के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत को और ज्यादा रासिख करती हैं, मतलब और ज्यादा मजबूत करती हैं। तो देखिए हमने पढ़ा कि बेशक ये सारे रिश्ते, वालिदैन, बहन भाई, सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, इनसे मोहब्बत भी लाजमी है, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत से बढ़कर नहीं। मतलब मोस्टली पेरेंट्स आजकल ऐसे हैं जो आप मतलब अगर आप कुछ मैंने देखे भी हैं, मतलब अगर बेटी सर बटा ले गई तो मतलब कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, सारे उन्हें बाल खोले हुए, आप ही छोड़ो, इसको ना करो। तो देखिए अब अगर बेटी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा है ना, तो वो अपनी माँ की बात ही मानेगी। बेशक अल्लाह ताला ने माँ की बात वालिदैन का हुक्म मानने का हमें पाबंद किया है, लेकिन अल्लाह ने पाबंद किया है ना, अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो जब हम अल्लाह का हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर उस बंदों की अपने पेरेंट्स या उनकी मोहब्बत का क्या कोई फायदा नहीं है ना। हुक्म हमें अल्लाह ने दिया, जब हम अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे तो ये मोहब्बतें तो वैसे ही बेसूद होगी, बेकार होगी, इनका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आप अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, आप अपने रिलेटिव्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी बात माने, उनसे मोहब्बत करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखते हुए कि इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत से कहीं ज्यादा ना हो जाए। अल्लाह की मोहब्बत हमेशा इनकी मोहब्बतों पर हावी रही है, और वो सिर्फ इसी तरह हो सकता है कि जब आप अल्लाह के एक काम पर अमल करें। बेशक रिलेटिव्स बातें करते हैं तो करते रहिए, आपकी मदर आपको मना करती हैं तो वो करते रहें, या आपकी फादर या आपके भाई या कोई आपका और रिलेटिव्स वो आपको ताने देते हैं या आपको तंग करते हैं, अगर आप कोई अच्छा काम करने लगे हैं तो आप अपना काम जारी रखिए, ये सोचते हुए कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। लोगों की मोहब्बतें, अपनों की मोहब्बतें भी जरूरी है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका ट्रांसलेशन। जी, यारा जान लेते अल्लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, इस यरौना, जब देख लेंगे, अल अज़ाबा अज़ाब, अन्ना बेशक, अल कुव्वता कुव्वत लिल्लाहि अल्लाह के लिए, जमीअन सारी, व अन्ना और बेशक, अल्लाहु अल्लाह ताला शदीदुल अज़ाब सख्त अज़ाब देने वाला। और काश ये जालिम अब जान लेते, जो ये उस वक्त जानेंगे जब अज़ाब को क़यामत के दिन देख लेंगे। और सारी कुव्वतों का मालिक अल्लाह ताला है, और बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। इस तबर्रा, जब बेजार हो जाएंगे, अल्लज़ीना ताबिऊ, जिनकी ताबेदारी की गई, मिनल्लज़ीना से जो अत्तबाऊ ताबेदारी करते रहे, वराअहू और देख लेंगे, अल अज़ाबा अज़ाब। ख्याल करो जिनकी इस दुनिया में पैरवी की, जब वो आखिरत में अपने पैरोकारों से बेजारी का ऐलान कर देंगे। मतलब जिनका, जो लोग अभी बुतों की पूजा करते हैं, या जो लोग गाय की करते हैं, या आग की पूजा करते हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन जब वो जिसकी पैरोकारी करते हैं, जिसका हुक्म मानते हैं, जब उनसे बेजार हो जाएंगे। तो यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क़यामत के दिन बुत और मुशरिकीन के झूठे सरदार अपने पैरोकारों से बेजारी का ऐलान कर देंगे।
उस वक्त झूठे खुदाओं के पैरोकार कहेंगे काश हमें एक बार फिर वापस दुनिया में जाना होता तो हम भी इनसे बेजारी का ऐलान कर देते, मगर क़यामत से पहले तो ये सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, फिर वो वापस कहाँ जाएंगे, लिहाजा वो जालिम अपने दुनियावी अमाल पर पछताएंगे और हमेशा आग में जलते रहेंगे। नेक्स्ट इसकी देख लेते हैं ट्रांसलेशन। बतकत्ताअत और टूट जाएंगे बिहिमुल अस्बाब उनके ताल्लुकात, और वो अजाब को देख लेंगे और उनके तमाम वसाइल मुनक़ते हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। वक़ाला और कहेंगे अल्लज़ीना तबअू ताबेदारी करने वाले लौ अन्ना काश लना हमको कररतन लौट कर जाना फनतबर्रा तो हम भी बेजार हो जाते मिनहुम इनसे कमा जैसे तबर्रऊ वो बेजार हो गए हैं मिन्ना हमसे। और कहेंगे ताबेदारी करने वाले काश हमें लौट कर जाना होता दुनिया में तो हम भी बेजार हो जाते इनसे जैसे वो आज हमसे बेजार हो गए। कज़ालिका यूं ही युरीहिमुल्लाहु दिखाएगा इन्हें अल्लाह अमालहुम इनके अमाल हसरतिन बाइसे पेशमानी अलैहिम इनके लिए वमाहुम और ना वो बिखारिजीना निकल पाएंगे मिनन नारी आग से। और पैरवी करने वाले कहेंगे काश में दुनिया में लौट कर जाना होता तो हम भी इनसे बेजारी का ऐलान कर देते जैसे वो आज हमसे बेजार हो गए हैं। इसी तरह अल्लाह ताला इन्हें उनके अमाल दिखाएगा जो उनके लिए बाइस हसरत होंगे और वो किसी सूरत में आग के अजाब से ना निकल पाएंगे। या अन्नासु इंसानों कुलू खाओ मिम्मा जो फिल अर्दी जमीन में हलालन हलाल तय्यबन पाकीज़ा, ए लोगों जमीन की इन चीजों में से खाओ जो हलाल और पाकीज़ा हैं। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हलाल से मुराद वो चीजें हैं जिनको शरीयत ने हराम ना करार दिया हो, और तय्यब मतलब पाकीज़ा से मुराद वो चीजें हैं जो गली सड़ी और गंदी ना हो। हलाल चीजें खाने से इंसान की रूहानियत मजबूत होती है और तय्यब चीजें खाने से इंसान की जिस्मानी सेहत पर बुरे असरात नहीं होते। तो उम्मीद है आपको हलाल हराम में तो मतलब वो चीजें पता है। फिर भी अगर किसी चीज के बारे में आपको डाउट हो कि वो हलाल है या हराम है तो आप उसके बारे में मुझसे डिस्कस कर लें। नेक्स्ट देखते हैं वला और ना तत्ताबियो तुम पैरवी करो खुतुवात इन कदमों के अशैताना शैतान की इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारा अद्दुव्वुन दुश्मन मुबीयन खुला। और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा बेशक यअमुरुकुम वो हुक्म देता है तुम्हें बिस्सूई बुराई का वल्फहशाई बेहयाई का वान और के तकूलु तुम बहुतान बांधो अल्लाही अल्लाह पर माँ जो ला तालमूना तुम जानते ही नहीं। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है और ये कि तुम अल्लाह ताला के मुतल्लिक ऐसी बात कहो जो तुम जानते ही नहीं। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, लिहाजा हर इंसान को शैतान की पैरवी से बचना चाहिए क्योंकि वो इंसान को बुराई और बेहयाई की दावत देता है और अल्लाह ताला की तरफ झूठी बातें मंसूब करने की तरगीब देता है। तो जब भी आपके जहन में कोई बुरा काम आए ना तो आप सोच लिया करें कि ये शैतान ने मेरे जहन में लाया है। और अगर आप मतलब सुबह आपसे उठना ही ना हो रहा नमाज के लिए तो आप समझे कि आप और शैतान में जंग हो रही है, और अगर आप नहीं उठते तो शैतान जीत जाता है और आप हार जाते हैं। ये बात माइंड में रखा करें और कभी शैतान को जीतने ना दिया करें। नेक्स्ट देखते हैं वाइजा और जब कोई कीला कहा जाता है लकुम उन्हें अत्ताबिउ पैरवी करो मांजला जो नाजिल फरमाया है अल्लाहु अल्लाह ने कायलू कहते हैं बल नत्ताबिउ बल्कि हम पैरवी करेंगे मा अल्फैना अलैहि जिस पर हमने पाया आबाअना अपने बाप दादा को। और जब इन्हें कहा जाता है कि तुम उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है तो कहते हैं बल्कि हम तो उसकी पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अगर बाप दादा हदायत याफ्ता हो तो उनकी पैरवी अंबियाए कराम और सालिहीन की सुन्नत है और इंसान को जन्नत में ले जाती है। अगर बाप दादा गुमराह हो तो उनकी पैरवी शैतान का धोखा है और इंसान को जहन्नुम में ले जाता है। अवलौ अगरचे का ना हो आबाउहुम उनके बाप दादा ला याकिलूना ना समझ सकते शैयन कुछ वला याहतदून और ना हिदायत याफ्ता हो। अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ समझते हों और ना हिदायत याफ्ता हों। इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट आयत के साथ ही देखेंगे। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी मेरे कोई भी क्वेश्चन हो ट्रांसलेशन के हवाले से एक्सप्लेनेशन के हवाले से तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर दें।
بغیر کسی سوچے سمجھے اور بغیر جھجک کے کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوشچن آپ کا ہو تو آپ مجھے اسی وقت ان باکس کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آ جائیں گے البلاغ المبین۔